Deepak bhai, you are also muted. No. Okay. Please follow three mantra. Huh? Yeah. Namo Vitragay. Namo Vitragay. Namo Arihantanam. Namo Varihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Sava Sahunam. Namo Loye Sauva Sahunam. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukkaro. Sauva Pavapanasano. Sauva Pavapanasano. Mangalanam cha Sauvesim. Mangalanam cha Sauvesim. Padamam Havai Mangalam. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Deepak bhai. Ma, do you have any question? Okay. Can I? Yes. I have to see now why. I'll just call 1 minute. Yes. Okay. Okay, go ahead. विचार तो एक मरी हुई वस्तु है, जिंदा वस्तु नहीं है। Okay. मरी हुई वस्तु में खुद तन्मयकार हो तो वक्त जिंदा हो जाती है। Right. Just a minute. Hello? How? Okay, by the time Kantiyaranji comes. Now, ये विचारों के बारे में ऐसा बताया है कि विचार वो फिजिकल है, थॉट्स, Okay. उसमें कोई लिविंग एस्पेक्ट नहीं है। Oh. जीवन जीने का जीवंत भाग कुछ नहीं है। वी आर लिविंग एज आई एम। और जब ये विचारों के साथ हम एक हो जाते हैं और उसके असर में आ जाते हैं तो फिर वो विचार हमें पकड़ लेता है। ओके। अब दोबारा पढ़िए वो। विचार तो एक मरी हुई वस्तु है। राइट। जिंदा वस्तु नहीं है। जिंदा वस्तु नहीं है। राइट। हाँ। मरी हुई वस्तु में खुद तन्मयकर हो तो वक्त जिंदा हो जाती है। राइट। कैसे वो मरी हुई वस्तु? मरी because there is no living part in it. Sometimes it get repeated also. Repeated means you repeatedly get those thoughts. That is a different story. ऐसा है ना, अगर आपने बैग में 10 किलो पोटैटो लाए हैं तो वो बैग में से 10 किलो पोटैटो ही निकलते रहेंगे। बोले अरे ये क्या निकले, अरे ये क्या है, अभी पोटैटो ही सब कुछ और कुछ नहीं है। आप समझे? वो वैसा है। ओके। क्योंकि अज्ञानता में कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ। अज्ञानता के कारण जो अहंकार की स्थिति है, स्टेट ऑफ इगोइज्म, उनकी मर्जी से वो कुछ भी कर सकता है।
Okay. तो वो अज्ञानता में, आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो कुछ भी हुआ था वो आज ये जया बहन है। और इसीलिए ये जया बहन को ये सब कुछ, whatever she passes through or she has to pass through all those situations of life, वो उसका कारण अज्ञानता है। जो आपको मार खाना पड़ता है, what suffering you have to pass through is because of that ignorant projection. Even if we want to change most of the things, we are not able to change it also. Yes, you cannot change, but many things you can change. In the sense, हमारी अंदर की ये जो निश्चय है ना, your conviction and decision not to hurt anyone, उसमें बहुत कुछ निकल जाता है। लेकिन अगर आगे का वो फोर्स ज्यादा है तो वो आपको धक्का मार देता है, ओवरकम करता है आपको, आपके आज के डिसीजन को ओवरकम करता है। ओके। एंड मेक यू सफर। ट्रू। लेकिन अगर आज का निश्चय प्रबल है, स्ट्रांग है, तो वो आगे का धक्का यानी पहले का धक्का आपको कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए निश्चय को सपोर्ट करना, निश्चय को प्रमोट करना है। सो निश्चय इज वीक। यस। वो क्या करेंगे कि देखो, जस्ट इमेजिन, you ever dash with the wall? Do you ever dash with a wall? No, no. So you just imagine what a conviction you have कि सामने दीवार आती है तो you immediately stop. True. What makes you stop? Okay, you work in the kitchen. And kitchen means you are handling live fire. Fire, yes. In these 40, 50, 60 years, how many times you got burnt? Unknowingly, sometimes. Unknowingly, but what? Someone who is dealing with the fire day in and day out, just few times only in these so many years. That means how much cautious you are, how much careful you are in the kitchen. आप समझिए? अब अभी देखो, I'll just ask, एक प्रश्न पूछता हूँ, आप जितनी बार जले किचन में, गंगाजलन से कितनी बार डैश किया, डिफरेंस कितना आया? बहुत कुछ। मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट? मल्टीपल टाइम्स, यस। वो क्या बताता है कि आप किचन में केयरफुल है, लेकिन गंगाजलन के साथ केयरफुल नहीं है। क्या? आप समझे? यही समझना है। Very, very weak. It's not a question of निश्चय. That conviction is poor. And when that conviction opens, becomes strong with Gangadharan, then these trifles will not happen. True. तो difference होगा ही नहीं। आप समझे? हाँ, very much. यही कि वो किचन का फायर से आप इतना अलर्ट है क्योंकि आपको पता है कि अरे ये तो बहुत नुकसान करवाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? यस, दैट्स व्हाट। तो यही कन्विक्शन हमें अभी कर लेना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस वी इनकर व्हेन वी मेस अप विद लिविंग पीपल? ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि ये जीवंत मनुष्य के साथ जो भी कुछ होता है ना, वो बहुत नुकसान करता है, क्योंकि फॉर जनरेशंस यू हैव टू रीपे टू देम। गॉट इट? इसीलिए केयरलेस इन दैट। या नो, बट नाउ इट्स लाइक व्हेन यू कम टू नो, यू हैव टू चेंज योर डिसीजन। यस, मेक अ डिसीजन नाउ। अब तक जो डिसाइड नहीं किया था, नहीं हुआ था, तो आज समझ के अभी कर दो। ट्रूली। यस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Yes, come. Yes, come. Kandiyanan ji. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Welcome. Okay, Arav ji. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि दादा ने कहा है जब मौन हो जाएंगे
तभी ऐसा माना जाएगा कि हम जगत को समझ पाए हैं। इसका मतलब क्या है? ये रेफरेंस क्या है आप बताएंगे बेटे? जी स्वामी जी, व्यवहार निश्चय विज्ञान भाग 7 पेज नंबर 604, सॉरी 608। ओके फाइन। आप दोबारा बोलिएगा। जब कांतियान मौन जी सांबड़ी जो हाँ हाँ जब मौन हो जाएंगे तभी ऐसा माना जाएगा कि हम जगत को समझ पाए हैं। जगत स्वामी जी, में क्या है? हाँ हाँ, क्या आप बोल रहे थे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस जगत के अंदर हो रहा है, इट हैपन्स। तो जब हो रहा है, कोई करने वाला है नहीं, तो बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। जी हम मौन भीतर से क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि जो हो रहा है उसे हम ये कर रहा है, और इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, तो ये शब्द की आवश्यकता होती है। जी समझे? जी हाँ, इट हैपन्स, तो फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी ये जगत में इतना ही समझने का है बस। कोई कुछ भी नहीं कर रहा, हो रहा है। जी जब मौन हो जाएंगे तभी ऐसा माना जाएगा कि हम जगत को समझ पाए हैं। स्वामी जी, जगत को समझने का मतलब? जगत को समझने का मतलब ये जगत की वास्तविकता क्या है, व्हाट्स द फैक्ट। जी हाँ, स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ मुझ जी, में योग्यता नहीं, ऐसा जान ले तभी से योग्यता की शुरुआत हो जाती है। हाँ। जी, इसका मतलब क्या है स्वामी जी? मेरे इसमें दादा भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे में योग्यता नहीं है, ऐसा जब जान लिया तो फिर योग्यता शुरू हो जाती है। वो कौन सा नंबर है बेटे? जी स्वामी जी, व्यवहार निश्चय विज्ञान भाग 7 पेज नंबर 602। ठीक है, ओके। मुझ में योग्यता नहीं है, ऐसा जान ले तभी से योग्यता की शुरुआत हो जाती है। योग्यता नहीं है ऐसा जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, तो तभी से योग्यता की शुरुआत हो जाती है। स्वामी जी, पर फिर भी ऐसा कभी कभी होता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझमें ये करने की योग्यता है, तो वो जो हमारी सोच है उसको कैसे दूर करें? वो हमारी सोच है, वो ठीक है, मगर ये जो बात है ये बहुत एक गहरी बात है ये। समझे? सभी लोग सभी प्रकार की योग्यता ही समझते हैं। मैं परिपूर्ण हूं, मेरे को सब आता है, ऐसी योग्यता लेकर घूमते रहते हैं। मगर ये इतना लघु भाव है कि मुझ में योग्यता नहीं है, ऐसा जान लिया
तभी से योग्यता की शुरुआत हो जाती है कि अब मुझे इस तरह से जीने का है। जी हाँ जी स्वामी जी, हाँ। बहुत बढ़िया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये दिव्य देशना का है। ना पेज नंबर बोलिएगा उसका 229। और बोलिए अभी। कषायों के फोटो न आए उसका नाम अक्रम, और कषायों के फोटो आए उसका नाम क्रम। मतलब ये ब्रिज कुमार की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का फोटो आना नहीं चाहिए। वो अक्रम है। क्या है अक्रम? कषायों के फोटो नहीं आए। हाँ, फोटो नहीं आना चाहिए। नहीं, जैसे हमारे को जैसे कभी गुस्सा हो गया, बाय चांस कभी गुस्सा हुआ, उसको मतलब फोटो वापस रिपीट नहीं हो क्या? नहीं, ये फोटो नहीं है। फोटो का मतलब क्या है? प्रकृति को जैसी है वैसी ठीक जानना, बस। अच्छा। कषायों के फोटो न आए उसका नाम अक्रम, और कषायों के फोटो आए उसका नाम क्रम। मतलब ये जो वीकनेस है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको कषाय बोलते हैं। हाँ जी। हाँ। तो वो फोटो आती है, मतलब वो दिखाई देता है, वहां तक क्रम है। क्रम है, क्रम। और कषायों के फोटो न आए मतलब ब्रिज कुमार के अंदर निकाल के तौर पर, परिणाम के तौर पर, हाँ जी, आप शुद्धात्मा होकर उसको जानते हैं, देखते हैं, तो वो अक्रम है। अच्छा। हाँ, यहाँ फोटो का मतलब है प्रकृति को जानना एज इट इज, जैसी है वैसी। अच्छा। हाँ, जो हो रहा है उसको देखते रहने का है। हाँ, वही अक्रम है। ठीक है। हाँ ठीक, समझ गया। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप, दिल्ली। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी, मुझे ये दादा दीवों में एक पद है, शुद्धात्मा मूल उपादानी अहम ममता अपादानी, मूल निमित्त एक संयोगी छोड़ाव्यो भव संसारे बंधु उसकी कृपा। शुरुआत कैसे है बताएं? दादा दीवो दूसरे में लास्ट जो पद है, शुद्धात्मा मूल उपादानी। एक मिनट। ओके फाइन। शुद्धात्मा मूल उपादानी अहम ममत अपादानी। हाँ जी, इसका थोड़ा अर्थ समझ नहीं आया। मूल उपादानी क्या? हाँ, उपादान का मतलब है प्राप्त करना।
ये शास्त्र की भाषा का शब्द है, प्राप्त करना, और अपादान का मतलब है त्याग हो जाना अपने आप। समझे आप? जी। तो पूरा अर्थ बताएं क्या? सर मोटा करो ऊपर से। हाँ, एक मिनट। मैं शुद्धात्मा हूं, उसका उपादान हो जाता है, और अहंकार और ममता का त्याग हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा, समझ। हाँ, दादा भगवान कैसे है? कैसे है तो कि मैं शुद्धात्मा हूं, उसका उपादान हमें करवा देते हैं, और अहंकार एवं ममता का त्याग करवा देते हैं। फिर भी कैसे है तो कि मूल निमित्त एक संयोगी, एक संयोग से वो निमित्त होकर ये हो जाता है। क्या हो जाता है? छोड़ाव्यो भव संसारे। संसार का मतलब है राग द्वेष। राग द्वेष से हमें मुक्त करा दिया। ऐसे ज्ञानी पुरुष को मैं परम विनय से वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मूल निमित्त जी। एक संयोगी, ये क्या मतलब है? मूल निमित्त मतलब वो जो दादा भगवान है वो स्वतंत्र करता नहीं है, इसलिए मूल निमित्त बताया। क्या बताया? मूल निमित्त एक संयोगी। वो एक निमित्त मात्र है, मतलब करता नहीं है। और एक संयोग, हाँ, एक संयोग संयोग मात्र। ऐसा आता है हाँ जी। तो वो प्रयोग में क्या हो जाता है तो कि छुड़ाव्यो भव संसारे, इस संसार से हमें मुक्त कराया। और ऐसे ज्ञानी पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, परम विनय से वंदन करता हूँ। मतलब वो निमित्त है, मतलब वो असल में निमित्त है और संयोग से ये सब होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये मुझे समझ में आया। और ये अगला जो है एक और मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, ये इसमें दादाजी की आरती में जो उसमें तरन तारण शब्द आता है, तरन तारण। हाँ, तरन तारण का क्या अर्थ होता है वो थोड़ा बताएं। तरण तारण का मतलब है इस भव सागर से, इस जगत से वो खुद मुक्त हुए हैं और हमें भी मुक्त करते हैं। तरण तारण, एक कृपा अमी दृष्टि, तरण तारण तारे। जे પોતે આ જગતથી મુક્ત થયા છે हिंदी में અને અને આપણને પણ મુક્ત કરે છે એમ। તરણ તારણહાર। अच्छा, ख्याल समझ में आया गया। जी? तो आप खुद हाँ मुक्त हुए हैं और अपने को दूसरों को भी मुक्त करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। धन्यवाद जी। जय सचिन। हाँ, क्योंकि जिसका कल्याण हुआ है वो ही, उनके निमित्त से ही दूसरों का कल्याण हो जाता है, करते नहीं है। जी तरण तारणहार, जी जी ऐसे दादा भगवान है। जी, समझ में आया। हाँ जी। जी, धन्यवाद। जय सचिन।
जय सच्चिदानंद। ओके, एक मिनट। अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये है सर, सांसारिक हिताहित का भान चला जाए, सांसारिक हिताहित का भान चला जाए, वह मोह कहलाता है। हाँ, मेरे क्या हित में है और क्या अहित में है, जी, ऐसी जागृति होनी चाहिए। अच्छा, फिर भी अगर जिसमें खुद का ही कल्याण नहीं है, वहां दूसरे का कहाँ होगा। हाँ, हिताहित, हिताहित, जो मेरे हित में है जी, तो वो दूसरों का काम हो सकता है, जी, मगर जो मेरे हित में क्या है, मेरे अहित में क्या है, वही अगर मेरे को मालूम नहीं है, उसका हाँ, भान भूल जाता है, भूल जाता उसी है। को ही मोह क्या कहते कहा, मोह का। मोह कहते हैं, हाँ, मोह। मोह कहते हैं। मोह मतलब अंधा हो गया आदमी, उसको दिखाई ना देता है, दिखाई हाँ, नहीं देता है वाह वाह, कि इसमें मेरा क्या हित है और क्या बिल्कुल, अहित है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और है सर, हाँ जी। एक और है, किसी का अहंकार भग्न करके सुखी हो ही नहीं सकता। अहंकार तो उसका जीवन है। हाँ, हरेक व्यक्ति कोई भी हो इस जगत के अंदर, वो उसका जो अहंकार है उसके आधार पर वो जीता है। अगर उसको भग्न करते हैं हम, उसको ठेस पहुंचाते हैं, तो वो हमारे साथ बैर बांध देता है। क्या कर देता है? बैर बांध देता है। हाँ, तो हमें वो मुक्त नहीं होने देता है। हम्म, इसलिए हरेक का जो जीवन है, चाहे छोटा आदमी हो, एकदम सामान्य आदमी हो, या झाड़ू लगाने वाला जो आते हैं अपनी सोसाइटी में, उसका भी अहंकार होता है। जी, अगर उसको भी ठेस पहुंचती है तो वो कुछ भी नुकसान हमें कर सकता है। जी, जी, हाँ, तो किसी के भी अहम को ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जीवन है। क्या है? जीवन है। हाँ, उसका जीवन है। मैं इस सोसाइटी की सफाई करता हूँ, उसके अंदर क्या है? हाँ। बहुत अच्छा था। जय सच्चिदानंद। ओके अशोक जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कोई हमें संजोग आते हैं तो वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन आते हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन हाँ। उसका प्रभाव हमारे परिवेश में, आसपास में रहने वाले अन्य लोगों पर भी होता है। तो वो उस व्यवस्थित शक्ति को समझ नहीं रहे और वो पजल में आ रहे हैं, सफरिंग में आ रहे हैं। उनको पजल होते हुए देखकर, सफरिंग होते हुए देखकर हमें फिर लगता है कि हम मतलब क्या ऐसा करें कि उनको ये बात साइंटिफिकली समझना तो वो चाहते ही नहीं है, और वो संजोगों के अधीन
परेशान हो रहे हैं, तो वहां की असर यहाँ भी आती है। तो उसके लिए हमें कैसे, मतलब अपने को सेफ कैसे रखें या कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? हमें तो शुद्धात्मा में रहकर गीता बहन का जो संयोग है उसको सिर्फ देखना है बस। उनको क्या असर हो रहा है वही सिर्फ देखना है। अगल बगल में जिनको जो भी हो रहा है वो उनके लिए है, और ये बात किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। स्वामी जी, हम तो समझे उसको आप? समझ गए, लेकिन बस तो बस हाँ, मैं समझ गई। हम समझ स्वामी जी, रहे हम तो हैं। समझ गए, हाँ बस तो बराबर है। लेकिन पर जो जो जिनको समझ में नहीं आ रहा और उनको हमें लग रहा है कि व्यवस्थित शक्ति और संयोग के अधीन ये कार्य हो रहा है, और वो उसमें बार बार लेके उसी बात को लेके वो परेशान हो रहे हैं। तो कोई एग्जाम्पल है आपके पास? ऐसा कोई दृष्टांत हाँ, है, कुछ बना है तो मेरे को बताइए, तो मैं आपका क्वेश्चन को ज्यादा क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि हाँ। माना मेरी रिलेशन में माना मेरे सिस्टर है, ब्रदर है, या मेरे हाँ। ब्लड रिलेशन में कोई भी है, तो हाँ जी। उनकी फैमिली में कोई बात हो गई। अब हाँ। वो बात मैं समझ रही हूँ कि वो हुई इस कारण है कि व्यवस्थित शक्ति के संयोग के कारण ऐसा हुआ है। हाँ। तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, संयोग को भी, हर चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन वो उसमें परेशान हो रहे हैं, और वो परेशान होकर मुझे भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या मेरी प्रकृति होती भी है बट नेचुरल कि मुझे मेंटली सपोर्ट करने के लिए। तो वहां मैं कैसे मतलब समाधान निकालूं वो उनके लिए, व्यवहारिक अपने दृष्टि लिए? से, व्यवहारिक दृष्टि से उसके साथ डीलिंग करना है, समझे? व्यवस्थित शक्ति करता है वो हमारे भीतर की समझ है, मगर उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना है कि फाइल का संभाव से निपटारा हो जाए, समझे? उसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा एक व्यवहार करना है कि ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से करेक्ट है, बस। ठीक बात है स्वामी मैं जी। सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे हम कोई रेस्टोरेंट में गए और वो रेस्टोरेंट में 2 कांच के ग्लास फूट गए, तो हमें भीतर से समझना है कि यह मैंने नहीं तोड़ा है, ये व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा है, ठीक है? मगर वो होटल वाले को, होटल के मालिक को ये व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा है, ये समझाने को हमें जाने की जरूरत नहीं है, समझे? उधर क्या व्यवहार है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से, तो वो बोलेंगे कि ये 2 ग्लास के पैसे दे दो, तो बस उधर पैसे दे दिए तो हम छुटकारा हो गया, उनका भी और हमारा भी, समझे? ये गीता बहन का जो व्यवहार है वो जगत के लोग जैसे कर रहे हैं उसी तरह से होने देना है। अच्छा। हाँ, और हमारी भीतर जो समझ है वो यह ज्ञान की होनी चाहिए। तो स्वामी जी, जो गलत रास्ते जो जा रहा है, वो हमें विजन से समझ में आ रहा है कि आगे जाकर कोई गड्ढे में गिर जाने वाले हैं, तो उस जाने वाले व्यक्ति के लिए फिर हम कैसे प्रे कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं हम उसके लिए कि आगे जाना? तो संजोग के हाथ है, वो तो रोक ही नहीं सकते, प्रकृति वो को तो तो बदल बराबर नहीं है, सकते। बराबर है। फिर फिर वहां भी क्या प्रे करेंगे? अपने को लगे तो उन्हें एक बार आप समझा सकते हैं।
समझना बहुत मुश्किल है। बस तो फिर कोई नहीं, छोड़ देने का, फिर पर छोड़ मालूम है देने गड्ढा का, है स्वामी छोड़ जी, देने का मालूम है गड्ढा है। है। मालूम है गड्ढा है आगे, हाँ गड्ढा मालूम है, है मगर गड्ढे उनको में जा नहीं रहा दिखाई, है, मालूम है। उनको नहीं दिखाई देता है ना, तो हम क्या करें, हम क्या करें पर उनको। उन स्वामी जी, हमारा ब्लड रिलेशन होता है उनसे, हम भी अफेक्ट कोई होते भी हैं। ब्लड, मैं क्या समझा, कोई भी ब्लड रिलेशन हो, एक बार हम उसको समझा सकते हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर छोड़ देने का, उसके पीछे नहीं पड़ने का। वो तो गड्ढे में पड़ेंगे तो अनुभव होगा ना, अनुभव कब होगा, ऐसे गड्ढे थोड़े में गिरेंगे। मानेंगे, ऐसे थोड़े मानेंगे, कोई अनुभव होने दो। हाँ। हमारी स्थिरता नहीं टूटनी चाहिए, ये बात हाँ। मेन है। हम दूसरों के संयोग से इतने इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन है मगर वो व्यवहार दृष्टि से है। सही बात है। हाँ, वो व्यवहार दृष्टि से है। काम और तो जैसा कार्मिक आप का काम भी कर रहे हैं। और जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। आप, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि इसका ऐसा परिणाम आएगा, मगर ऐसा परिणाम न भी आए, कोई अच्छा दूसरा परिणाम भी आ सकता है। हाँ, फिर भी उनके जो कर्म स्वामी के जी, फल अभी है आपने उसके हिसाब से होगा। हाँ, हाँ, आप कुछ बता रहे थे। अभी आप है ना, जो दादाजी ने गुरु लघु स्वभाव का जो कंसेप्ट दिया है, मतलब हाँ जी, कैसे उन्होंने मतलब इसको कितना अच्छे से कि लघु और गुरु, मैंने गुरु करके कितना हाँ गुरु बता दिया और लघु करके कितना लघु बता दिया, लघु तो बता कितना दिया। है ना। आप खोल हाँ के बताओ थोड़ा सा और। हाँ, फिर भी मूल जो आत्म तत्व है वो न लघु है न गुरु है, दोनों से परे हैं। हाँ, दोनों से परे हैं। आमतौर पर क्या होता है, सब कंपटीशन में लगे होते हैं, स्पर्धा में लगे होते हैं, इससे बड़ा मैं, इससे बड़ा मैं, इससे भी बड़ा मैं, ऐसा होता है, समझे। मगर जो आत्मज्ञानी पुरुष है, उन्होंने क्या कहा कि इस जगत के अंदर सबसे छोटा, सबसे लघुत्तम पुरुष मैं हूं। कोई कहेंगे आप गधे हैं, तो वो कहेंगे गधे से भी छोटा हूं मैं। तो ऐसी दृष्टि उनकी थी। तो रियल में, वास्तव में वो गुरुत्तम थे। ऐसा भी कहते थे, हम 14 लोक के नाथ है। पूर्ण परमात्मा प्रकट हुआ है, ट्रांसपेरेंट। आप जो मांगे वो मिलेगा, आप मांगते भूलेंगे। ऐसा ये ज्ञानावतार प्रकट हो गया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है पुरुष। स्वामी। हाँ, लघुत्तम जी। पुरुष। हाँ। दादाजी को सुन सुन के ही, मतलब उनका सुन के ही जो इतना अहंकार चढ़ा हुआ था ना देहाध्यास का, सब नॉर्मल हो गया। हाँ हाँ, हमारा भी अहंकार जैसे जैसे समझ में आता है तो हमारा भी लघु होता जाता है। और हम दादाजी से प्रार्थना भी करते हैं कि आपके जैसा लघुत्तम भाव और अभेद दृष्टि
हमें प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। और वो सिर्फ बोलते हैं ऐसा नहीं है, उस तरह जीवन जिया और उनके दर्शन हमें हुए, कैसे इस तरह जिए हो। हाँ, ठीक है। जैसे दादाजी की बुक में पढ़ा ना कि माना ज्ञान दर्शन के बारे में पढ़ते थे। अब पूरा एकदम से विजन क्लियर होता जा रहा है, ज्ञान दर्शन अपने आप सामने आता जा रहा है। जगत हाँ, का हाँ, हाँ, पूरा एकदम से क्लियर होता है, जगत क्या है और जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मतलब उसकी व्याख्या अपने आप अंदर खुलती जा रही है, खुलती जाती है, खुलती जाती है, जैसे जैसे समझ में आता जाता है। और दिन ब दिन एक अहोभाव, एक भक्ति प्रकट होती जाती है अपने आप। कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप। इसीलिए बताया ना, ये ज्ञान जो है ये स्वयं क्रियाकारी है, स्वयं क्रियाकारी। ठीक बोला। हाँ, नहीं तो आत्मा का और देह का जो भेदांकन किया ना दादाजी ने, ये शब्दों में ही, सच में शब्दों में था। अब फील होता है कि मतलब आत्मा की क्लियरिटी फील होने लगी, क्लियरिटी बिल्कुल फील होने लगी है, प्रकृति अलग फील होने लगी है। हाँ, हाँ। पहले सिर्फ शब्द रटते थे, हाँ, शब्द को रटते थे, उसकी डेप्थ क्या है, इसकी इसका क्या है ना कि इसका इंटेंशन, हर एक शब्द का एग्जैक्टनेस हमें समझ में आता है। और समझ में आता है इतना ही नहीं, हम इसका अनुभव कर रहे हैं दिन ब दिन। इसका अनुभव कर रहे हैं। और इसका भी एक आनंद हम अनुभव करते हैं। कई बार है ना, मतलब मन को ये लगता है कि ये व्यवस्थित शक्ति की ही व्यवस्था है, इस तरह से कि पूरे युग होना, युगों में युग पुरुष प्रकट होना, ज्ञान होना, मतलब अज्ञानता से जो चल ही रहा था, ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था सी नजर आती है कि सब प्रकृति की ही व्यवस्था है कि कब किस को ज्ञानी पुरुष मिलने हैं और भेजने हैं, कहाँ किसकी डिमांड पूरी करनी है। हाँ, 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 ऐसा फील होता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, एक बात बताऊं मैं? बताइए। दादा भगवान बंबई में थे। हाँ जी। दादा भगवान बंबई में थे, एक महात्मा के घर थे, और तभी उनकी बेटी आई उनके कुछ सहेलियों के साथ। तो दादा ने उनको बुला के कहा विधि कर लो। वो बेटी जल्दी में थी सहेलियों के साथ, तो उन्होंने विधि कर दी और फिर कहा हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, कल वापस आएंगे। तो दादा ने कहा ठीक है। फिर वो दूसरे दिन आए तो बोले वहां उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और सब लोग बच गए। और फिर दादा के पास आए दर्शन करने के लिए। तब दादा ने बताया कि जब वो उनकी बेटी आई उनकी सहेलियों के साथ, दादा ने कहा मैंने उनको ऐसे पहाड़ से ऐसे गिरते हुए देखा, तो मैंने वो कुछ भी बातें किए बगैर उनको बोला पहले आप विधि कर लो। और दादा ने विधि की, ये लोग वापस आ गए, तो ये बात बनी। तो बहन जो बोल रहे थे ना कि आपको पता है कि सामने वाला खड्डे में गिर ही रहा है, तो आप तरफ से प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर सकते हैं तो प्रार्थना जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा दृष्टि के साथ हम शायद अगर नहीं कह पाते
वाणी से नहीं कह पाते तो भाव से हम किसी के लिए भी प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इतनी अच्छी बात बता दी दादा ने, ये तो मुझे याद आया तो मैं बोला शेयर। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी। स्वामी जी, अभी गीता बहन के क्वेश्चन में आप कह रहे थे ना, तो हाँ उसी जी। के अंदर में मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे क्या है, कई बार अपने अपने ही घर में झगड़ा हो जाता है भाइयों औरों में, तो फिर अपन को अंदर से ये लगता है कि भाई कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए, हाँ बराबर है। इसलिए हम उसमें दखल करना चाहते हैं, बचाव करना चाहते हैं। बराबर है। हाँ, तो उसके लिए अपन कोई प्रयास करते हैं तो वो करना चाहिए ना अपन को। हाँ, वो प्रयास भी हो जाएगा, मगर इसके पीछे हमारे जो भीतर है वो आग्रह नहीं होना चाहिए। अच्छा। आग्रह मत समझते, मैं जो कहता हूँ वो समझ जाए, मान ले, जी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो ये चाहते हैं भाई शांति हो जाए। हाँ बराबर है। बराबर। अपने परिवार में है तो हम प्रेम से, दिल से उसे बता सकते हैं कि देखो भैया, आप ये जो कर रहे हैं इसका परिणाम ये आएगा, ऐसा मुझे लगता है, आपको कैसा लगता है? जी। समझे, बस कितना बात कर सकते हैं। हम्म, तो फिर वो भी, उनके भी समझ में आएगा, और फिर भी वो सुनने के बाद भी जैसा आपने बताया है वैसा वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसके पीछे दीप- आग्रह तो नहीं होना चाहिए ना, आग्रह नहीं, नहीं होना चाहिए। तो दीपक भाई की बात भी सही है कि अपन प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ, दादा भगवान से प्रार्थना कर सकते ये बहुत अच्छी बात दीपक आनंद जी ने बताई है कि जहां भी हमारे शब्द, जहां भी हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, अगर वहां भावना की जाए, दादा भगवान से प्रार्थना की जाए, तो वो ज्यादा असरकारक है, जी। उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। हाँ जी। बस यही कहना चाह रहा था। जय सच्चिदानंद। ठीक है, जय सच्चिदानंद अशोक जी। विनीता जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रागी होना ये गुनाह है, सिंगल गुनाह है। क्या? और रागी, राग जी। हाँ। व्यवहार में रागी होना सिंगल गुनाह है और निरागी होना डबल गुनाह है। तो इसमें दादा क्या कहना चाहते हैं? रागी होना सिंगल गुनाह है जी। और बैरागी होना, निरागी होना, व्यवहार में निरागी होना, हाँ, डबल गुनाह है। निरागी होना डबल गुनाह है। ये कौन सा सूत्र है? दिव्य देशना से ही है स्वामी जी। अच्छा, दिव्य देशना में ही है जी। इसमें एक और चीज थी, जैसे किसी भी चीज में जल्दबाजी करना ये सिंगल गुनाह है और जल्दबाजी न करना ये डबल गुनाह है। हाँ, ये भी था और ये भी है। अच्छा, तो ये इससे पता चल जाएगा ये नॉर्मलिटी में लाने की बात कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? नॉर्मलिटी में नॉर्मलिटी। हम कभी कभी इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि हमें जिस बस में बैठना है उस बस के बजाय दूसरी बस में बैठ जाते हैं। बराबर। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। जी जी। तो ये राग का कैसे स्वामी जी?
व्यवहार में हाँ, राग राग का मतलब है कि अपनी जो रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है, वो ही सबसे बड़ा राग है, बराबर। वही सबसे बड़ा राग है। और निरागी, आपका जो व्यवहार है परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, जी उधर अगर आप निरागी हो गए तो वो डबल गुना हो जाएगा, क्योंकि वहां पूरा अटैचमेंट के साथ व्यवहार करना है बराबर, और भीतर से डिटेच रहना है। बहुत बढ़िया। समझे? जी हम जी क्या करते हैं, बाहर से डिटेच हो जाते हैं, बराबर। इतने निरागी हो जाते हैं कि भीतर शुरू होता है इसमें मुझे क्या। जी 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 हाँ, ये मुझे क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फाइल है तो वो फाइल का संभाव से निपटारा करना है और हमें वितरागी होना है। जी जी मतलब रागी बाहर भी से नहीं, निरागी भी नहीं, वितरागी। जी जी हाँ बाहर से सामने वालों को महसूस नहीं हो कि अंदर क्या चल रहा है, ड्रामा करना है। हाँ 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 हाँ। जैसे किसी जगह पे आपको नहीं जाना है, किसी के घर पे आपको नहीं जाना है, जी समझे, जी फिर भी आपके कोई रिश्तेदार है या आपके हस्बैंड है, वो आपको बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, उनको उधर हो आए, जी समझे, जी तो नहीं जाना है, ये आपके भीतर की बात है, जी आप जाना भी नहीं चाहते हैं, मगर अब यहाँ न राग है न निरागी है, मगर ये हस्बैंड की जो फाइल है उसका संभाव से निपटारा करना है। क्या करना बराबर है? बराबर संभाव निपटारा से निपटारा करना है। और जी आप उनके साथ जा रहे हैं तो आपके फेस से उनको ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि आप जबरदस्ती से आ रहे हैं, जी जी राजी खुशी से नहीं आ रहे हैं, बराबर समझे। मगर ये हमारी जो निरागी है ना, वो डबल गुना में आ जाता है। सही बात। उनको पता चल जाता है कि ये आना नहीं चाहती है मगर जबरदस्ती आ रही है। बराबर हाँ, तो उस टाइम वो अपना जो सहज व्यवहार है, पहली जो आज्ञा है, उधर हम कच्चे पड़ जाते हैं। बराबर हाँ सहजता रखनी चाहिए उस टाइम पे, है। सहजता रखनी चाहिए उस टाइम पे। सहजता कब रहेगी? ये फाइल का निपटारा करना है बस। बराबर और हम कहीं भी जाने वाले और नहीं जाने वाले नहीं है, जी व्यवस्थित शक्ति के आधार पर हो रहा है। नहीं जाना वो भी व्यवस्थित शक्ति पे आधार है, जाना वो भी व्यवस्थित शक्ति पे आधार है। जी बिल्कुल हाँ, सही। तो ये दोनों से जब हम मुक्त होते हैं तो वितरागी का अनुभव होता है, जी स्वामी मतलब सभी गुणे से हम मुक्त हो जाते हैं। बराबर। हाँ जी स्वामी स्वामी जी एक हाँ दादा जी। भगवान ने बोला मौन के समय कड़काई इस दुनिया में कोई भी नहीं है, शब्दों से व्यक्त की गई कड़काई तो व्यर्थ चली जाती है। इसमें दादा भगवान क्या हाँ, कहना चाहते हैं? दादा भगवान यही कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा वहां न बोला जाए, ये सबसे ज्यादा कड़काई है। हम देखते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, डांटते हैं, भला बुरा कहते हैं, मगर वो सुनने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर हमारा जो बोला हुआ है वो सब निकम्मा जाता है, ठीक स्वाम और ये निकम्मा जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बोलते ही जाते हैं, एक नहीं एक की एक बात 10 बार बताते हैं। बराबर तो दादा भगवान का कैसा था? मौन था। कैसा था?
मौन कड़काई, हाँ, शब्द बगैर की स्ट्रिक्टनेस, जी इसका ज्यादा असर पड़ता है। मान लो आपकी कहीं गलती हुई, ठीक है, जी उस समय आपके अंदर ऐसा होगा कि अभी मम्मी डांटेगी, अभी मेरे को बोलेगी, जी मगर वहां मम्मी एक शब्द भी नहीं कहती है, क्योंकि जो गलती हुई है वो मम्मी को भी पता है और आपको भी पता है, जी समझे। तो जो गलती जिसने की है उसको भी पता है, तो वो हमें कहकर दूसरी गलती नहीं करने की है। जी हम नोटिस बोर्ड नहीं है, जी हम नोटिस बोर्ड नहीं है, तो वहां इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जी। हाँ, स्वामी जी इसमें कड़काई का मतलब? स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस है बहुत बड़ी। जो शब्द से काम नहीं होता वो बिना बोले हो जाता है, जी ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। शक्ति कहते हैं, शक्ति, शक्ति, हाँ, शक्ति नहीं, शक्ति, शक्ति, सख, सख, शक्ति, 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 स्ट्रिक्टनेस, मतलब जी इसका असर ज्यादा होता है। जी मौन कड़काई में शब्दों से भी ज्यादा असर है, क्योंकि वो सूक्ष्मता है, बराबर, जी शब्द स्थूल है, सही जी बात। स्वामी जी। शब्द स्थूल है। पर हाँ, बोलने का बहुत रहता है स्वामी जी, बच्चों को बोलने का है? रहता ही है। हाँ, नहीं नहीं, वो बोला बराबर है, निकल बराबर जाता। आप बोलते हैं वो बराबर है, मगर इसके पीछे हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए। बराबर, अभी बताया ना मैंने, जी 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 हम बोलते हैं मगर इसके पीछे क्या हमारी समझ रहती है कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही ये करे। बराबर, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर ये निकल गया तो आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, मगर सही बात, हमारा भीतर जो आग्रह है, पकड़ है, उसकी वजह से सामने वाले की भी पकड़ मजबूत होती है भीतर, कि सही आप बात, जो कहते हैं ना वो तो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है जी स्वामी। हाँ, तो आग्रह के हमारे लिए पर भी सामयिक जब, हाँ, हाँ जी, सामयिक करें आग्रह के लिए, फिर जो है आग्रह रहता है वो कैसे हटे, मतलब उसके लिए सामयिक करके उसको कम करें। नहीं, सामायिक करके तो बराबर है, मगर वो हमारे पहले समझ में आना चाहिए बराबर, कि कोई भी बात किसी को माननी नहीं माननी वो उसके बस की बात नहीं है। बराबर, हाँ, हम बच्चों को या कोई भी है उसको समझा सकते हैं, जी उसको समझा सकते हैं, सही बात, करवाने के हम दावेदार नहीं हैं। सही बात, जी और जहां हम करवाने जाते हैं वहां बात सब बिगड़ती है। बिगड़ती है, बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, हमको बोल देने का, बस एक बार बता दिया तो आपका व्यवहार पूरा हो गया। जी अब क्या हो रहा है वो सिर्फ देखना है। और वो जब तक मानते नहीं ना स्वामी जी, तब तक अंदर चलता ही रहता है। हाँ, वो आग्रह की वजह से चलता रहता है। जी बिल्कुल समझ आ गया। हाँ, पकड़ है ना, भीतर पकड़ पक्का है, है। मेरा बच्चा, मेरी लड़की मेरा नहीं मानती, जी जी बिल्कुल वो ज्यादा परेशान करता है। सही बात है। जी स्वामी जी, आशीर्वाद रहे स्वामी जी सबका। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। दादा भगवान का सभी पर आशीर्वाद है बस। जय सच्चिदानंद। कांतिया जी, हमारा समय हो गया है, आप त्रिमंत्र बुलाए। विनीता जी, आरव जी, आप फॉलो करिएगा। जी नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम,
नमो वत्सायनम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए तव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुक्कारो सव्व पावपणाशनो तव पावकणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।